Hello student, how are you? I'm hoping that you are enjoying your lockdown period due to coronavirus. So in this time, you have to require very hard work if you want to create history, means secure 100 marks in chemistry. Student, I'm Shivam sir, welcome back to another important video. Today I'm telling you gas equation. What is gas equation? Okay, question is what is gas equation? An equation which is obtained by the combination of Boyle's law and Charles' law and Avogadro law is called gas equation. But according to your standard, you can learn an equation. This is a higher standard. That definition I have told you. But according to your standard, you have to learn simple definition. An equation which is obtained by the combination of Boyle's law and Charles' law. It's called gas equation. Okay, what is gas equation? An equation which is obtained by the combination of Boyle's law and Charles law. It's called gas equation. एक इक्वेशन जो बायल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन होता है उसे कहते हैं गैस इक्वेशन. सो लुक हियर, gas equation, an equation which is obtained by the combination of Boyle's law and Charles law is called gas equation. So according to Boyle's law V is inversely proportional to 1 upon P at constant temperature. Question 1. According to Charles' law, V is directly proportional to T at constant pressure. Question number 2. Combining equation 1 and 2. Combining equation 1 and 2. Combining equation 1 2 we get V is proportional to T upon P. Remove this sign, we get V is equal to K into T upon P. So definition of gas equation is an equation which is obtained by the combination of Boyle's law and Charles law. It's called gas equation. What is gas equation? An equation obtained by the combination by combining Boyle's law and Charles law. It's called ideal gas equation. It's called gas equation. So look here, P in divide, it become here multiply. We can write PV upon T is equal to K. Question number 3. If pressure changes from P1 to P2, volume changes V1 to V2, temperature changes T1 to T2, then from equation 3 we can write, from इक्वेशन 3 पहले हमने सब 1 ले लिया तो आपका हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K. अब हमने सब कुछ 2 ले लिया तो हो जाएगा P2 V2 अपॉन T2, P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K. This is equation 4.
This is equation 5. Okay, now we get from equation 4 and 5 के की ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दी, तो आपका हो गया P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2. This equation is called gas equation according to your standard. What is gas equation? An equation which is obtained by combining Boyle's law and Charles' law. It's called gas equation. But higher standard definition is an equation which is obtained by the combination of Boyle's law, Charles' law, Avogadro law. It's called gas equation. Normally, PV is equal to PV upon T is equal to K. But we can also take either here gas constant R, PV upon PV is equal to RT. If we take in the place of K R, then we can say PV is equal to RT. This is for 1 mole, for 1 mole. If number of moles are n for n mole, we can write PV is equal to nRT. And this equation is called ideal gas equation. Ideal gas equation. PV is equal to nRT is called ideal gas equation. Now next topic is standard temperature and pressure. What is standard temperature and pressure? Standard temperature and pressure. Standard temperature is 0 degree Celsius or 273 Kelvin. Standard pressure is 1 atm, means 1 atmospheric pressure, or 760 millimeter or 76 centimeter millimeter of mercury. So learn it. Standard temperature is 0 degree Celsius or 273 Kelvin, and standard pressure is 1 atmospheric pressure or 760 millimeter or 76 centimeter of mercury. Now I am telling you numericals. First numerical is what volume of oxygen would be required. आपको इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है ऑक्सीजन का. टू बर्न कंप्लीटली 200 मिलीलीटर ऑफ एसेटलीन. एसेटलीन बर्न हो रही है. एसेटलीन का फॉर्मूला होता है C2H2 और बर्न करने के लिए हम लेंगे O2. तो कह रहा है एंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड. व्हाट वॉल्यूम ऑफ, यहां पर ऑक्सीजन फॉर्म लिखा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन in this question is what volume of oxygen would be required. आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए ये फाइंड करना है. बर्न कंप्लीटली 200 मिलीलीटर एसेटलीन. एसेटलीन का फॉर्मूला होता है C2H2. ये बर्न हुआ तो कह रहा है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म. आपको CO2 का भी वॉल्यूम निकालना है. तो पहले हम लोग एसेटलीन को बर्न करेंगे. रिएक्शन क्या होती है देखिए. एसेटलीन बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. To balance this reaction, multiply here by 2. 2 2 ja 4. We get 4 CO2. Oxygen, number of hydrogen 2 2 ja 4. So we have to take here right hand side, left hand side number of hydrogen 2 2 ja 4. So we have to take hydrogen on right hand side. देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे. 2 2 जा 4. अब हम इन सबके ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. 2 ऑक्सीजन, 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 10 ऑक्सीजन, 5 2 जा 10. अब सबके वॉल्यूम लिख लेंगे. वॉल्यूम जो साइड में बगल में लिखे हैं. C2H2 का वॉल्यूम कितना है ये 2, तो ये हो गया 2 वॉल्यूम. वॉल्यूम को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं वॉल्स. ऐसे ही इसका ऑक्सीजन का वॉल्यूम हो जाएगा 5 वॉल्यूम्स, 5 वॉल्स. कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हो जाएगा 4 वॉल्यूम्स, 4 वॉल्स. और वाटर का हम लोग वॉल्यूम नील कंसीडर करते हैं. Actually, before telling you this numerical, I am telling you
Volume of gaseous Avogadro law for combining volumes. What is Avogadro law for combining volumes? Volumes of gas. और यहाँ पर एक आपका अवोगैड्रो लॉ होता है, एक होता है गे लुशैक लॉ। तो पहले मैं आपको इनको सॉल्व करने से पहले बताऊंगा गे लुशैक लॉ क्या होता है। देखिए गे लुशैक लॉ, क्योंकि ये टोटल सम गे लुशैक लॉ पे बेस्ड है। गे लुशैक लॉ, तो ये गे लुशैक लॉ होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अदर। Volume of gaseous reactant and product bear a simple ratio to one another when measured under identical condition of temperature and pressure. Example: nitrogen gas combine with hydrogen gas to form ammonia gas. तो यहां पर देखिए ये गैसियस नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है और ये आपका अमोनिया गैस है। तो वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, गैसियस रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर ए सिंपल रेशियो टू अनदर, मतलब गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम सिंपल रेशियो में एक दूसरे के साथ में होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर ए सिंपल रेशियो टू अनदर व्हेन मेजर्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लॉ आप याद कर लीजिए। क्या लॉ है? बहुत ईजी है। वॉल्यूम ऑफ, देखिए इसका वॉल्यूम कितना है, N2 के बगल में कितना है, 1 है, तो इसका वॉल्यूम हो गया 1 वॉल्यूम। हाइड्रोजन के बगल में 3 है तो वॉल्यूम हो गया 3 वॉल्यूम। अमोनिया के बगल में 2 है तो वॉल्यूम हो गया 2। तो लैंग्वेज बनी वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर ए सिंपल रेशियो, ये सब सिंपल रेशियो में होते हैं। तो इसका सिंपल रेशियो क्या हो गया? 1:3:2। वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अदर व्हेन मेजर्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका रेशियो हो गया 1:3:2, 1:3:2। ओके, तो डिफिनेशन बनी वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट bear a simple ratio to one another when measured under identical condition of temperature and pressure। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। क्या रूल है? लास्ट टाइम बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट bear a simple ratio। तो इसका वॉल्यूम हो गया 1, ये वॉल्यूम हो गया 3, ये हो गया 2। तो वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट bear a simple ratio to one another, देखिए सिंपल रेशियो में होता है, when measured under identical condition of temperature and pressure। This law is called Gas-Lussac law। This is the example: 1 volume of nitrogen gas combined with 3 volume of hydrogen gas to form 2 volume of ammonia gas। तो सिंपल रेशियो क्या बना? 1:3:2, 1:3:2। Okay students, now I am telling you numerical based on Gay-Lussac law of combining volumes। full form is Gay-Lussac law of combining volumes। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको जो फाइंड करना है उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऑक्सीजन फाइंड करना है, इसके सामने क्वेश्चन मार्क, और आपको CO2 फाइंड करना है, इसके सामने क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप देखिए अब कह रहा है 200 मिलीलीटर ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का अमाउंट दे दिया गया है 200 मिलीलीटर। तो लिखेंगे 2 वॉल्यूम एसिटिलीन रिक्वायर ऑक्सीजन कितना? ये 2 वॉल्यूम एसिटिलीन को ऑक्सीजन कितना चाहिए? 5 वॉल्यूम। तो मैं लिखेंगे 2 वॉल्यूम एसिटिलीन रिक्वायर, 2 वॉल्यूम एसिटिलीन रिक्वायर, 2 वॉल्यूम एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। 2 वॉल्यूम एसिटिलीन रिक्वायर, 2 वॉल्यूम एसिटिलीन रिक्वायर ऑक्सीजन। हाउ मच ऑक्सीजन रिक्वायर? 5 वॉल्यूम। ओके, तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन एसिटिलीन रिक्वायर ऑक्सीजन। जब ज्यादा से कम के लिए निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, आपको छोटी क्लास में सिखाया गया है। ठीक है, अब हमारा वॉल्यूम कितना है? 200 मिलीलीटर। तो 200 मिलीलीटर वॉल्यूम एसिटिलीन रिक्वायर, इसमें 200 मिलीलीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कम से ज्यादा के लिए निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आपका 100 आ गया। 5 1 जा 5, ये आपका आ गया 500 मिलीलीटर। तो पहला आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन था
ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो चाहिए, रिक्वायर ऑक्सीजन कितना, 500 मिलीलीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ O2, सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन देखिए कितना है, 200 ml है। यहाँ पर वॉल्यूम 2 है और यहाँ पर CO2 में वॉल्यूम कितना है, 4 है, इसका जस्ट डबल है। तो एसिटिलीन का वॉल्यूम दिया गया है 200 ml, तो इसका 200 का डबल क्या हो जाएगा, 400 मिलीलीटर। एक बार फिर से देख लीजिए, एसिटिलीन, हमें CO2 का वॉल्यूम निकालना है। एसिटिलीन का वॉल्यूम कितना है, 2 है। जब एसिटिलीन का वॉल्यूम 2 है ना, और यहाँ पर CO2 का वॉल्यूम क्या है, 4, इसका जस्ट डबल है। तो आपका ये वॉल्यूम दिया गया है 200 मिलीलीटर, इसका डबल क्या होगा, 400 मिलीलीटर। सो वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। अब वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ CO2 400 मिलीलीटर। Student, I hope that you can understand all the points of this video. Like this video, share it to your all friends, subscribe my channel. Okay students, if you have any problem then write in comment box, I will try to solve your problem.